Okay. So we in last lecture we discussed the one linear programming example in which some decision variables are given, some objective functions are given, some constraints are given, and that we solve that example by using the solver. Okay, I show that example. I already showed the example online by solving it using the Excel solver add-ins. Okay, हमने देखा कि जिसके एक्सेल एनवायरनमेंट में सॉल्वर नहीं है उन्होंने पहले उसको इंस्टॉल करना है. ओके, इट इज प्रेजेंट इन द फाइल मेनू इन द ऑप्शंस. ओके, जिसमें के एडिंस होता है. एडिंस में जाके आपको सॉल्वर आपके जो मेनू बार है उसमें ऐड हो जाता है और जब आप डेटा पे क्लिक करते हो देन यू विल गेट देयर इज द सॉल्वर. ओके, before using the solver we need to give all the datas, we need to map all the datas into the excel sheet and we need to give the formula. So by using that data and the formula solver help us to solve the problem. ये हमने देखा था. ओके, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि उसको हमने सॉल्व कैसे किया है. तो कल आपने परफॉर्म किया क्या? वो हैव यू परफॉर्म करके देखा आपने? यस, परफॉर्म करके देखा क्या? वाई? मैम वो कुछ बहुत डिफिकल्ट जा रहा है वो कैलकुलेशन करना और वो कुछ जल्दी से समझ में नहीं आता इसलिए नहीं किया और वैसे भी फोन में किया तो वो हैंग हो जा रहा है इसलिए ट्राई नहीं हो रहा वो. मोबाइल में तो प्रॉब्लम हो रहा है. ओके, जिनके यस पास मैम. पीसी लैपटॉप है उन्होंने किया क्या? एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड जयश्री दैट प्रॉब्लम. मैम 2-3 एग्जांपल सॉल्व के बाद समझ में आएगा वो. अभी अच्छा. फिलहाल वो नया नया है इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है. Okay, so here now I am presenting my screen. So here I am giving one more problem. So all of you can try this problem. Okay, आपको वो try करना है. जयश्री, अगर आपके पास पीसी नहीं है, आई थिंक दैट एडिंग्स इज नॉट अवेलेबल इन द मोबाइल फोन. मोबाइल फोन में नहीं है शायद. यस मैम, नहीं है. तो आपने आपके अगर पास में कोई आपके फ्रेंड रहते होंगे तो आप उनसे उनके साथ शेयर करो. हाँ मैम, कल्पना रहती है बट वो फिलहाल वो गांव में गई तो इसलिए कुछ नहीं है फिलहाल. अच्छा. अच्छा. तो जब आएगी तब मैं पूछ लूंगी उससे क्या बोलते हैं क्या नहीं. ओके, तो आप उनके साथ शेयर करो और जब आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. ओके, ओके मैम. देखो हमने ये कल प्रॉब्लम देखा था या हमने ये शीट 1 पे मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा था और शीट 2 पे हम ट्राई कर रहे थे. तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था इट हैविंग द सेम आंसर आ गया है यहाँ पे देखो. ओके, तो ये हमने कल देखा. अभी आज हम इससे ही रिलेटेड मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ. तो ऑल ऑफ यू जिसके जिसके पास पीसी है उन्होंने ट्राई करो. ओके, ये एग्जांपल हमने सॉल्व किया था एंड दिस इज वन मोर एग्जांपल. राइट डाउन दिस एग्जांपल फास्ट. ये एग्जांपल लिख कर लो. ये आपको सॉल्वर का यूज करके सॉल्व करना है. ओके, यस्टरडे आई एक्सप्लेन द मेथड्स एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. ओके, फॉर प्रैक्टिस. Write it fast. Don't take too much time. My screen is visible to everyone. यस मैम. Yes, ma'am. Okay, write it fast.
finish, all of you? Yes, Jayashree, Mayuri, Dipali. Yes, ma'am. Okay. So now we are discussing. So in last lecture we discussed that is how to solve the linear program. We discussed the different types of model. That is, we discussed the mathematical model. Before the linear programming, we discussed the mathematical model. Okay, that is it solved by using the formulas and all that. Then we discussed the decision table. Then we discussed the decision tree. Okay, that is how to select the alternatives by using that. Okay, now today we are discussing here, that is in last lecture we discussed the linear programming by using the Excel solver add-ins. Now today we are discussing here, that is how to check, that is the sensitive, what if and goal seeking analysis. Whenever we are using this type of technique to solve the problem, then whenever that is we are providing the inputs and it generate the related output, then we are checking the sensitivity of that. Now how to check the sensitivity? Now here we are checking the sensitivity by performing the what if analysis and the goal seeking analysis. Now how to check the sensitivity? Now here we are checking the sensitivity by assesses the impact of changes in the input on the output. Now we already performed this in last lecture. I show whenever I am giving the formula to generate the profit, at that time whatever the input you are given and whatever the profit is generated by the one thing that we are calculating. एक प्रोडक्ट हमको जितना प्रॉफिट दे रहा है, एक्स और वाई दो प्रोडक्ट लिए थे हमने, और एक्स से मिलने वाला प्रॉफिट और वाई से मिलने वाला प्रॉफिट. अब नंबर ऑफ एक्स इंटू द प्रॉफिट ऑफ वन, then plus number of y into the profit of 1. That is we are given the formula to find the profit. Okay, तो यहाँ पे हमने वैल्यूज चेंज की थी. यहाँ पे जब हम इनपुट का वैल्यू चेंज करते हैं, सो इट इम्पैक्ट ऑन द आउटपुट. अगर मैं नंबर ऑफ एक्स मैंने 10 डेवलप किया और नंबर ऑफ वाई मैंने 20 डेवलप की, और उससे मिलने वाला आउटपुट, और उसके बाद मैंने इनपुट चेंज की, नंबर ऑफ इनपुट 15, नंबर ऑफ सॉरी एक्स इज 15 एंड वाई इज 20, तो ऑब्वियसली वहां पे जो मिलने वाला प्रॉफिट है वो फिगर चेंज होगा. सो इन दिस वे वी आर चेंजिंग द सेंसिटिविटी, दैट इज व्हाट इफ एनालिसिस से और गोल सीकिंग एनालिसिस से. अब यहाँ पे देखो, दैट इज इट eliminate or reduce the variables. Okay, by eliminating and reducing the variable also we are performing the sensitive analysis. Can be automatic or trial and error basis. अभी देखो automatic हमने कल देखा कि यहाँ पे automatic sensitive analysis is performed in the standard quantitative model implementation such as linear programming. linear programming में हमने देखा sensitive analysis कि यहाँ पे हमने जो हमको ये पता नहीं था कि नंबर ऑफ एक्स और नंबर ऑफ वाई कितना डेवलप करना चाहिए तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा. सो दैट वी आर सॉल्व बाय यूजिंग द सॉल्वर. ओके, वहां पे हमने देखा इट चेक द ऑटोमेटिक सेंसिटिविटी. लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो ऑटोमेटिक सेंसिटिविटी को टेस्ट करता है. और दूसरा क्या है, ट्रायल एंड एरर. ट्रायल एरर में हम क्या करते हैं, दैट इज चेंजेस इन एनी वेरिएबल और इन सेवरल वेरिएबल इट अफेक्ट ऑन द आउटपुट वेरिएबल. ओके, तो यहाँ पे हम जो ट्रायल एंड एरर है इसके लिए हम दो अप्रोचेस यूज करते हैं, दैट इज व्हाट इफ एंड द गोल सीकिंग. ऑटोमेटिक एनालिसिस में हमने देखा कि लीनियर प्रोग्रामिंग में वो क्या करता है, ऑटोमेटिक एनालिसिस करता है. दैट इज इफ आई डोंट नो व्हाट इज द value of x and y, so it will generate that x and y to maximize the profit, to minimize the loss. Okay, जो हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड है जिसमें हमने देखा कि हम एक तो ट्रायल एंड एरर मेथड में हम सेंसिटिविटी चेक करते हैं सिंपली बाय चेंजिंग द वेरिएबल्स. अगर मैं ए बी की वैल्यू चेंज करती हूँ तो सी पे क्या इफेक्ट पड़ता है. ए बी हमारा जो है वो हमारा प्रोडक्ट है जो हम सेल कर रहे हैं. अगर हमारा ए और बी का सेल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए अगर हम मॉडल का यूज कर रहे हैं. एंड एट दैट टाइम if I sell A number of product and B number of products, so I got the C as a profit. If I change the value of A and B, so definitely it reflect on the
C, that is the changes in the variable or in a several goal seeking variable. अब यहाँ पे देखो जो दो अप्रोचेस हम यूज करते हैं, व्हाट इफ एंड द गोल सीकिंग अप्रोच, ये हम देखेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल शो किया है जिसमें आप देख रहे हो कि दिस एग्जांपल अगेन डन इन द एक्सेल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया है चेंज इनिशियल सेल इन सेल B10। सेल B10 जो है ये B है और यहाँ पे 10, यहाँ पे जो है ये 120 बताया है। प्रीवियसली ये सेल कितना था, देखो यहाँ पे फर्स्ट बताया है कि चेंजेस इन द इनिशियल सेल B10 and the cell growth rate in cell B11 to evaluate the changes in annual profit. Okay, तो यहाँ पे देखो पहले क्या था, इनिशियल सेल 100 था, फ्रॉम 100 there changes to 120। B10 में देखो at present what is the value in B10, that is 120। okay, previous value क्या था 100, they are changing। if the cell value is 100, then the percent growth, that is growing at 3%, then what is the net profit? And if they are changing from 100 to 200, that is the cell from 100 to 200, and the growing rate, that is from 3% to 4%, then what is the value of the profit? Then the profit changes from 127 to 182। ओके, यहाँ पे हमको बताया है कि व्हाट इफ एनालिसिस, इफ व्हाट देन इफ दिस देन व्हाट विल बी द वैल्यू। ओके, जैसा हमने एक सिंपल प्रोग्राम देखा था C++ में, इफ दिस इज द परसेंटेज, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, then pass in distinction, if this then this। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस। अगर परसेंटेज का वैल्यू ये रहेगा तो रिजल्ट का वैल्यू ये रहेगा। ओके, इफ और एक हमने प्रॉब्लम देखा था टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल, याद है आप लोगों को, इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक प्रोग्राम लिया था हमने। इफ दिस इज द यूनिट एंड दिस इज द चार्जेस, इफ यूनिट इज लेस देन और इक्वल टू 30, देन व्हाट विल बी द चार्जेस। ओके, इफ यूनिट इज greater than or greater than 30 and less than 100, then what will be the charges। okay, तो उसको हम क्या बोलते हैं, what if analysis। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में बताया कि प्रीवियसली B10 का वैल्यू 100 था और यहाँ पे B11 का वैल्यू जो था, that is this is the B10 value and this is B11 value। previously instead of 120 it is 100, this previously in B11 that is 0.03, then the annual profit value is 127, but if they are changes this value from 100 to 120 and the growth rate from 3% to the 4%, then the net profit is 182। so definitely if you are changing the value of the B10 and B11, so it will reflect on the this B14 cell। okay, this is the what if analysis to check the sensitivity। okay, समझ में आया आपको? everyone understand? we are changing the sensitivity, if we are changing the input value it reflect on the output, so in this way we are changing the sensitivity। हम यहाँ पे देखो कि जब भी हम प्रोग्राम करते हैं in C++ और in any language, when you are given the number of condition, तो वहां पे हम क्या करते हैं, जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो हम प्रोग्राम रन करते समय हम इनपुट वैल्यू के डिफरेंट कॉम्बिनेशन देते हैं और चेक करते हैं वेदर इट इज जनरेटिंग द प्रॉपर आंसर और नॉट। इफ इट जनरेट द प्रॉपर आंसर दैट मीन्स आवर प्रोग्राम वर्किंग वेरी वेल, अदरवाइज देयर इज सम बग, वी नीड टू फाइंड इट। ओके, समझ में आया आप सभी को? एवरीवन गेटिंग द पॉइंट? यस मैम। यस। तो ये हमारा हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा कि व्हाट इफ एनालिसिस, अगर हम B10 और B11 का वैल्यू चेंज करते हैं इट विल रिफ्लेक्ट ऑन द B13। दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इज कॉल्ड एज एन सेंसिटिव एनालिसिस यूजिंग व्हाट इफ एनालिसिस। इफ दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इफ दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, so that's this type of analysis
sensitivity analysis is called as an what if analysis. Now the next example, next जो type है हमारा एक, that is goal seeking by using the goal seeking. अब goal seeking देखो, बैकवर्ड अप्रोच, ये बैकवर्ड अप्रोच है, मतलब हमको आउटपुट पता है बट वो आउटपुट लाने के लिए हमको इनपुट क्या चाहिए ये हमको पता नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला है, बैकवर्ड अप्रोच। मुझे ये पता है कि मुझे 75% लाना है, बट मुझे ये पता नहीं कि मुझे उसके लिए कितना स्टडी करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम उसका एनालिसिस करते हैं कि इतना परसेंटेज लाने के लिए मुझे कितना स्टडी करना पड़ेगा, इतना प्रॉफिट लाने के लिए मुझे कितना सेल करना पड़ेगा, कितना कौन सा प्रोडक्ट डेवलप करके उसको सेल करना पड़ेगा। दैट इज नथिंग बट द बैकवर्ड अप्रोच। सो हियर गोल सीकिंग अप्रोच इज कॉल्ड एज एन बैकवर्ड अप्रोच। इट स्टार्ट विथ गोल। जैसे मैंने बोला कि टारगेट हमको पता है, उस टारगेट के लिए मुझे, हम टारगेट से इनपुट की तरफ जाते हैं, हमको टारगेट पता है बट उसके लिए हमको एफर्ट कितने लेना है, फ्रॉम टारगेट टू एफर्ट वी आर डिसाइडिंग। ओके, इसलिए इसको क्या बोला है, बैकवर्ड। हम कुछ केसेस में क्या करते हैं, हम एफर्ट पहले लगाते हैं, वी आर यूजिंग द एफर्ट एंड देन वी गॉट द गोल, ये हो गया फॉरवर्ड अप्रोच। लेकिन बैकवर्ड अप्रोच, वी गो विद द गोल एंड रीच टू द एफर्ट, कि ये मेरा टारगेट है और मुझे इसके लिए कितना एफर्ट लगेगा। ओके, so that's why this approach is called as an backward approach. Now it determines the value of input needed to achieve the goal. देखो मैंने आपको बताया, determines the value of inputs needed to achieve the goal. अब यहाँ पे देखो, they are given just one example, what annual R&D budget is needed. R&D का कितना बजट होना चाहिए for annual growth rate of 15% by 2014. ओके, और इसका हमने एक, कल ही हमने एक एग्जाम्पल देखा कि हमने देखा कि वहां पे हमको पता है क्या, एक्स को लगने वाला वर्किंग आवर कितना है, एक्स1 को डेवलप करने के लिए कितना टाइम आवर्स लग रहे हैं, कितना मटेरियल लग रहा है, और वाई को डेवलप करने के लिए कितना टाइम, हाउ मेनी टाइम पीरियड इज रिक्वायर्ड टू डेवलप द x2 एंड how much costing material is required to develop the x2. ओके, उसके बाद हमने देखा कि x1 हमको क्या प्रॉफिट दे रहा है, x2 क्या प्रॉफिट दे रहा है। तो हमारा गोल क्या था, वी वांट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। हमारा गोल है कि हमको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, लेकिन हमको ये पता नहीं था कि हमको x1 और x2, कितने x1 और कितने x2 डेवलप करना पड़ेगा पर मंथ, तो हमारा प्रॉफिट रेट बढ़ेगा। ओके, दैट इज वी नो द टारगेट, वी वांट टू, हमारा टारगेट क्या था, वी वांट टू इंक्रीज द प्रॉफिट पर मंथ फ्रॉम द प्रीवियस मंथ। प्रीवियस मंथ से हमको इस मंथ में हमारा प्रॉफिट इंक्रीज करना है, दैट इज माय गोल। But I don't know how many x1 and how many x2 we want to develop to achieve the maximum profit. Okay, so we solve that problem by using the linear programming. Linear programming का use करके हमने वहां पे, we are providing the sufficient information for the model, that is we are providing the how many hours are required to develop the x1, how many hours required to develop the x2, what is the material costing required to develop the 1x1 and what is the material costing required to develop the 1x2. Then we provide what is the maximum capacity of the company for providing the maximum working hour as well as maximum material they are able to provide. Then what is the requirement of market, maximum requirement of market is x1 for x1 and x2. We are providing all these things.
Okay, so I'm audible. Yes, ma'am. So, in last lecture, we provide the sufficient information to the solver, and from that कि कितना मटेरियल लगेगा और हमारा what is the limited capacity of material, of working hours, and what is the market need. We are providing all these things, and solver provide the solution, that is how many decision variable, that is input variable, that is x1 and x2 we need to develop, so we'll get the maximum profit. So this is the goal seeking method. This is the backward approach, and it determines the value of input needed to achieve the goal. Okay, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया है, that is if uh, if you know the result, means we know the result that you want form a formula, but you are not sure what input value the formula require to get the result. You can use the goal seeking approach. कल हमने क्या किया था, सिंपली वी आर गिवन द फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला ही दिया था ना, वी आर प्रोवाइडिंग द वैल्यू। कल के जो एग्जाम्पल में है हमने वहां पे, आई विल शो यू दैट एग्जाम्पल अगेन। देखो यहाँ पे हमको x1 और x2 का वैल्यू हमको पता नहीं था, तो हमने सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला दिया था। ओके, हमने सिंपली यूज किया था f8 एंड g8। f8 और g8 का वैल्यू हमको पता नहीं था, बट वी नो द फॉर्मूला, सो फ्रॉम द फॉर्मूला इट इज एबल टू फाइंड द इनपुट। हमको यहाँ पे जो डिसीजन वेरिएबल है x1 और x2 का, हमको ये पता नहीं था कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए हमको कितना x1 और कितना x2 डेवलप करना है। बट वी नो द फॉर्मूला, दैट इज दिस इज द फॉर्मूला, दैट इज द डेवलप नंबर ऑफ x1 इनटू द प्रॉफिट फ्रॉम x1, द नंबर ऑफ x2 प्लस नंबर ऑफ x2 into the profit from x2. So we gave this formula here for to find the profit. Okay, तो हमको फॉर्मूला पता था, और उस फॉर्मूले से हमने यहाँ पे by using this constraint, they are given the constraint for the labor budget for the lower limit of x1 and the higher limit, that is the it should be greater than or equal to 100 and it should be greater than or equal to 200. So from this information we got the value of how many x1 और how many x2 we have to develop. ये value उसने हमको find करके दिया. Okay, clear to everyone? Everyone understand? Yes, ma'am. So this type of method is called as an goal seeking method, जिसमें हमको अगर proper value पता नहीं है, but we know the formula, from that from the goal we are able to reach to the input, हम input find कर सकते। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, that is goal seeking method. Okay, तो यहाँ पे भी देखो कि उन्होंने बताया कि प्राइस पर आइटम, ये जो है इनपुट वैल्यू है, ब्लू एरो से जो इंडिकेट किया है दैट इज द इनपुट वैल्यू। वी नो द प्राइस पर आइटम एंड द नंबर ऑफ मंथ। ओके, बट वी नो द फॉर्मूला, हमको फॉर्मूला पता था, तो हमने वो फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पे पेमेंट जो भी है ना, दैट इज गोल सीकिंग, वी नो द फॉर्मूला, दैट वी आर प्रोवाइडिंग द फॉर्मूला टू जनरेट द पेमेंट जनरेट करने के लिए हमने ये यूज किया है। हेलो, गुड मॉर्निंग। कब फॉर्म फिल किया क्या आपने? हाँ हाँ, आज आ जाओ आप 3 बजे के बाद, मैं आज आने वाली हूँ। कल भी मैं वहां पे थी, आप लेट आए थे शायद। अच्छा अच्छा, ठीक है, आज आ जाओ आप, मैं हूँ वहां पे। आपको मैसेज नहीं आया क्या अभी? ठीक है, आप आ जाओ। ओके।
Okay, so in this way, by using the formula, they are able to find the value of payment here. Okay, so this type of analysis is called as an goal seeking analysis. Clear to everyone? Any confusion? I'm audible? Yes, ma'am. So clear? All of you are clear the point, or you have any doubt? Please reply. Reply everyone. Yes, Mayuri, Dipali, Jayashree. Understood, ma'am. Okay, no doubt. No, ma'am. Okay. Now the next point, that is, we are showing the example of computing a break even point using goal seeking. Okay, break even point यहाँ पे देखो. Now value that generate the zero profit. ओके हम ब्रेक इवन पॉइंट ऐसे वैल्यू जो हमको जीरो प्रॉफिट देगा, दैट इज ऑल्सो वी आर एबल टू फाइंड. तो देखो यहाँ पे कंप्यूटिंग अ ब्रेक इवन पॉइंट यूजिंग द गोल सीकिंग, the value that generate the zero profit, that is a break, we are using the formula break even equal to the fixed cost divided by the selling cost minus the variable cost. Now what is the fixed cost? Now where the fixed cost is nothing but the cost that not changes, such as the tax and the insurance. These are the types of payable amount. ये जो है हमको टैक्स पे करना है, वॉट एवर द that product we are selling, whatever the income we are getting from that, so we need to pay the tax, we need to pay the insurance. Okay, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स कॉस्ट बोलते हैं. उसके बाद सेलिंग प्राइस, मतलब द प्राइस दैट ऑफ दैट यू आर गिविंग, प्राइस दैट यूनिट सोल्ड. ओके, जो आप प्रोडक्ट को सेल करने वाली प्राइस जो यूज कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस बोलते हैं. एंड द वेरिएबल कॉस्ट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन यूनिट. वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे देखो कि जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको लगने वाला जो भी मटेरियल है उसका कॉस्ट हमेशा वेरिएबल रहता है. कभी उसका रेट बढ़ता है, कभी उसका रेट कम होता है. तो दैट वी आर कंसिडरिंग व्हेनेवर वी वांट टू फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट यूजिंग द गोल सेकिंग. मतलब ऐसी वैल्यू जो हमको जीरो प्रॉफिट देगा, तो उसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें हम 3 वेरिएबल्स यूज करेंगे, दैट इज द फिक्स कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. तो वी आर यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज द फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट. सेलिंग कॉस्ट मतलब जो हम सेल कर रहे हैं, और वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो हम प्रोडक्शन के लिए जो भी मटेरियल यूज करेंगे, जो भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, जो भी हमारा खर्चा रहेगा, वो हम इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे. और उसके बाद जो हमारा फिक्स कॉस्ट है उससे उसको डिवाइड करेंगे. एंड बाय यूजिंग दिस एनालिसिस वी आर एबल टू रिमूव द ब्रेक पॉइंट from our model. Okay, we are able to find the figures which will give the zero profit for the company. That is also done by using the goal seeking method. Okay, now उसके बाद हम देखते हैं कि problem solving search method. We already discussed the search method in the 3rd chapter at that time when we are discussing the phases of decision support system. जिसमें हमने कौन से phases देखे थे? You are able to tell me the phases? चॉइस फेज था, डिजाइन फेज था, हाँ. इम्प्लीमेंटेशन सबसे पहले इंटेलिजेंस फेज, उसके बाद डिजाइन फेज, उसके पास चॉइस फेज, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन फेज था. ठीक है, तो हम यहाँ पे ये जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग सर्च मेथड है, दैट इज रिलेटेड टू द चॉइस फेज. ओके, सर्च मेथड यूज इन द चॉइस फेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. Which are the different problem solving methods? That is also we are discussed already. That is analytical technique,
then algorithms, blind search and the heuristic search technique. ये हमने डिस्कस किया था जब when we discuss in the third chapter, that is the choice phase. At that time we discuss all these technique, that is the analytical technique. There are the different searching algorithms are there, then blind search algorithm and the heuristic search algorithm is also there. Okay, उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल डिजाइनिंग में हमने देखा था कि नॉर्मेटिव मॉडल्स है. फॉर नॉर्मेटिव मॉडल कंपेयरिंग ऑल द आउटकम्स ऑफ अल्टरनेटिव. अब यहाँ पे हमने देखा था कि एक नॉर्मेटिव मॉडल था और एक दूसरा कौन सा मॉडल था? यस, नॉर्मेटिव मॉडल्स एंड एक ऑप्टिमाइजेशन. उसमें हमने ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक देखी थी. एक नॉर्मेटिव मॉडल था और एक डिस्क्रिप्टिव मॉडल था, है ना. नॉर्मेटिव मॉडल में दो टेक्निक थे, एक ऑप्टिमाइजेशन एक सब ऑप्टिमाइजेशन, है ना. तो हमने नॉर्मेटिव मॉडल जो ऑप्टिमाइजेशन हमने देखा था कि हम हर एक जो अल्टरनेटिव है हमारे पास, हम सभी अल्टरनेटिव का आउटकम्स क्या आता है ये हम देखते हैं. ओके, नाउ इफ देयर इज एन फर्स्ट अल्टरनेटिव, what is the outcome of the first, what is the outcome of the second, then after we are finding the outcomes of all the alternative, then we are selecting which one is the best, इन सब में से बेस्ट कौन सा है, then we are selecting that particular alternative. ओके, तो हम यहाँ क्या करते हैं, नॉर्मेटिव मॉडल सब भूल गए आप. थर्ड चैप्टर में हमने ये सब पूरा डिटेल में देखा था. नॉर्मेटिव मॉडल कंपेयरिंग ऑल द आउटकम्स ऑफ अल्टरनेटिव, ये हमने देखा था कि वो सब क्या करता है, सभी जितने भी अल्टरनेटिव्स हमारे पास है सभी अल्टरनेटिव्स के आउटकम क्या करता है, कंपेयर करता है. और कंपेयर करने के बाद सबसे बेस्ट सॉल्यूशन सभी अल्टरनेटिव में से कौन सा है, इसलिए हम उसको ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं. सबसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो फाइंड करता है. पूरे कंपैरिजन के बाद जो बेस्ट है, बेस्ट ऑफ बेस्ट, वो अल्टरनेटिव हमको वहां पे देता है और हम वो अल्टरनेटिव यूज करते हैं. तो उसमें हमने देखा था कि इट यूजेस द एनालिटिकल अप्रोच इज यूज. एनालिटिकल जिसमें हर एक अल्टरनेटिव का आउटकम निकाला जाएगा, सबको एक दूसरे से कंपेयर किया जाएगा और सबसे बेस्ट जो है वो फाइंड किया जाएगा. दूसरा मॉडल था हमारे पास डिस्क्रिप्टिव मॉडल. देखो अभी मैंने आपको बताया नरेटिव मॉडल एंड डिस्क्रिप्टिव मॉडल. डिस्क्रिप्टिव मॉडल क्या करता है, a comparison of limited number of alternatives used. यहाँ पे वो क्या करता है, डिस्क्रिप्टिव मॉडल में यहाँ पे हमारे पास हम जो अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर रहे हैं उससे बेस्ट अल्टरनेटिव भी हो सकता है, बट बाय यूजिंग द टाइम कंस्ट्रेंट इट कंपेयर द लिमिटेड नंबर ऑफ द अल्टरनेटिव. जो फर्स्ट गुड इनफ सॉल्यूशन रहेगा वो क्या करेगा, उसको सेलेक्ट कर लेगा. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी अल्टरनेटिव्स है वो सारे अल्टरनेटिव्स नहीं सेलेक्ट करेगा, चेक करेगा. वो पहला चेक करेगा, दूसरा चेक करेगा, तीसरा चेक करेगा और तीसरा अगर उसने थर्ड इस पे उसको सॉल्यूशन मिल जाता है तो वो क्या करता है, इट सेटिस्फाइड, दैट इज आई एम गोइंग विथ दैट ओनली. ओके, जब तक मतलब उसको सॉल्यूशन नहीं मिलता है वो अल्टरनेटिव तक वो जाता है, बट वो उसके आगे के ऑप्शंस को नहीं सेलेक्ट चेक करता कि इससे बेटर भी सॉल्यूशन मुझे मिल सकता है. जो पहला गुड इनफ सॉल्यूशन है वो उसके साथ वो अल्टरनेटिव को वो सेलेक्ट कर लेता है और दैट इज इट यूज फॉर द सॉल्यूशन. ओके, तो डिस्क्रिप्टिव मॉडल जो है हमारा, दैट इज कंपैरिजन ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ अल्टरनेटिव इज यूज. सो इट यूजेस द blindly or the heuristic search are used in this type of model. ओके, तो ये दो हमने एक्चुअली ये हमने पूरा डिटेल में थर्ड चैप्टर में डिस्कस किया है. So all of you understand this? Yes, ma'am. Okay. So these are the different search methods they are given here. That is for the optimal solution, for optimal this is for the optimal the best solution. देखो हमने यहाँ पे optimization जो अभी मैंने आपको बताया that is the analytical. Generate improved solution or get the best solution directly. वो क्या करता है, सर्च कंटिन्यू चालू रहता है उसका. मतलब मुझे एक जो अल्टरनेटिव मैंने सेलेक्ट किया उससे मुझे कुछ आउटकम मिला, लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट
अल्टरनेटिव। देन उसके बाद हम देखते हैं कि ये मुझे जो प्रीवियस मिला था, प्रीवियस से जो नेक्स्ट मेरा अल्टरनेटिव है, क्या मुझे उससे बेस्ट सोल्यूशन मिला? तो हम यहाँ पे जब हम लास्ट सोल्यूशन तक पहुंचते हैं और जब हमारा सोल्यूशन इम्प्रूवमेंट नहीं होता, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मुझे एक बेस्ट सोल्यूशन मिल जाएगा। सपोज मैं कुछ जैसा हम यहाँ पे आगे हम देखेंगे, हमारे स्टडी में है कि न्यूरल नेटवर्क का यूज करते हैं हम। तो न्यूरल नेटवर्क क्या करता है, नंबर ऑफ इवेंट्स परफॉर्म करता है कि हर एक बार मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगी, मुझे कुछ एक एक्यूरेसी मिलेगी, फिर से वो क्या करता है और ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए फिर से उसको एग्जीक्यूट करता है। और एक पॉइंट पे आके सपोज मुझे प्रीवियसली 75% एक्यूरेसी मिली थी, फिर मैंने उसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए यहाँ पे वो क्या करता है, एरर मिनिमाइज करता है एरर, और फिर से उसको एग्जीक्यूट करता है। इस टाइम मुझे 85% एक्यूरेसी मिली, फिर से उसने क्या किया, बैक ट्रैक किया और फिर से एग्जीक्यूट किया। तो यहाँ पे इस बार मुझे है तो 95% एक्यूरेसी मिली, वो फिर से कर रहा है, बट यहाँ पे आके मेरी एक्यूरेसी कांस्टेंट होगी। दैट मॉडल वी आर नॉट एबल टू गिव द एक्यूरेसी मोर देन 95%, मतलब इससे ज्यादा एक्यूरेसी इंप्रूव नहीं हो सकती। तो वहां पे वो उस सॉल्यूशन को बेस्ट सॉल्यूशन कंसीडर करके एक्सेप्ट कर लेता है। तो ऑप्टिमाइजेशन में ऐसा ही होता है, जनरेट द इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन और गेट द बेस्ट सॉल्यूशन डायरेक्टली। कब स्टॉप करता है, वे नो इम्प्रूवमेंट इज पॉसिबल, जब इम्प्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है वहां पे वो स्टॉप कर देता है एंड सेलेक्ट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ओके, ब्लाइंड सर्च में यहाँ पे एक एग्जॉस्टिव सर्च होता है, एक पर्टिकुलर सर्च होता है। एग्जॉस्टिव सर्च में ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस आर चेक्ड। ओके, देन कंपैरिजन स्टॉप व्हेन ऑल अल्टरनेटिव्स आर चेक। कब खत्म होगा, जब पूरे अल्टरनेटिव खत्म हो जाएंगे तब वो स्टॉप करेगा और उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन को सेलेक्ट करेगा। और यहाँ पे पर्टिकुलर सर्च में क्या होता है, चेक ओनली सम अल्टरनेटिव्स। यहाँ पे वो क्या करेगा, कुछ ही अल्टरनेटिव्स को चेक करेगा। सिस्टमैटिकली ड्रॉप द प्रायोरिटीज एंड सॉल्यूशंस एंड कंपैरिजन कैसे करेगा, कंपैरिजन सिमुलेशन व्हेन कंपैरिजन इज स्टॉप व्हेन सॉल्यूशन इज गुड इनफ। मैंने आपको अभी बताया ना कि पहला गुड इनफ, पूरे अल्टरनेटिव वो चेक नहीं करेगा, पहला किया, दूसरा किया, तीसरे अल्टरनेटिव पे उसको एक सॉल्यूशन मिल गया and that is considered this is the good enough solution for me and I'm going with this alternative. तो यहाँ पे best among alternative will check. okay, उसको पहले अगर मेरे पास 10 अल्टरनेटिव है और 10 में से वो थर्ड या फोर्थ अल्टरनेटिव पे है और वहां पे उसको सॉल्यूशन मिल गया, so that satisfied with that solution only. वो ये नहीं सर्च करेगा कि इसके बाद और कुछ मुझे अल्टरनेटिव्स मिल सकते हैं या कुछ हो सकता है, वो ये बिल्कुल नहीं देखेगा। ओके, तो यहाँ पे वो अपना सर्च स्टॉप करेगा और सॉल्यूशन को सेलेक्ट कर लेगा। ओके, उसके बाद का है, दैट इज द नेक्स्ट वन इज द ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक ओनली प्रॉमिसिंग द सॉल्यूशंस आर कंसीडर। ओके, इसमें क्या करेगा, वो जो पॉसिबल सॉल्यूशन है इट गो विद दैट ओनली, स्टॉप व्हेन सॉल्यूशन इज गुड इनफ। यहाँ पे भी वो क्या करेगा, लिमिटेड नंबर ऑफ सॉल्यूशन को चेक करेगा, व्हेन द सॉल्यूशन इज गुड इनफ देन इट स्टॉप द प्रोसेस। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग सर्चिंग टेक्निक। ओके, so in this way we use the different searching methods. I hope everyone is understand. Any confusion? No, ma'am. Okay, so in this way it fine. So we'll discuss the more points in the next lecture. इसमें किसी को कोई difficulty है, किसी को कोई प्रॉब्लम है? अटेंडेंस मार्क किया है सभी ने? Yes, ma'am. Only 6 student is in the lecture. 6
भी नहीं है, एक तो मैं ओनली 5 स्टूडेंट. हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द नेटवर्क सिक्योरिटी लेक्चर? मैम जावा का लेक्चर था जावा आज। था, हाँ. कितने स्टूडेंट थे उसमें भी? हम 4-5 ही थे। 7 थे मैम। ओके. 2 कौन थे 7 और? थे। यस प्रणाली, गेटिंग द पॉइंट्स? Yes, ma'am. Reshma, you understand? Tipali? Very few students. Rupali is continuously absent in the lecture. What happened? उसकी शादी है मैम। शादी है रूपाली की? हाँ कल। अरे बाप रे. Okay. Okay, if you are complete the attendance and if you don't have any difficulty, then leave the lecture and join the next lecture. Okay. If you have any difficulty, then you can ask me. बाप रे